Hello students, today our topic is HTML and this is HTML part 4, and in this lecture we are going to discuss about some HTML tags. So let us take them one by one. First of all, special character entities in HTML. How a special character can be treated in HTML. So what are special characters? There are some special characters. These are less than, greater than, ampersand, double quotation mark, single quotation mark. So these are the special characters, and we cannot use them as it is as in HTML as used in Word. So what we have to do, there is a special method to use these special characters. So first of all, some special characters have special meaning in HTML and therefore cannot be used as in the text. And so the reason behind is that some special character have some special meaning. For example, this is a symbol of tag. Tag is always written with an arrow. So we cannot use arrow as a character or as a text. But if you want to use as a text, then there is a special procedure for it, and we can easily follow. If we follow this procedure, then it is possible to use these characters. So there are certain characters in it. These are less than, greater than, ampersand, double quotation mark, and single quotation mark. And some characters are reserved in HTML, so that's why we cannot use them directly. And character entities are used to display reserved characters in HTML. And what is the method for using these special characters? With ampersand sign, ampersand and then entity name. So using ampersand sign, you can use any special character, and if you know the entity number, then use ampersand and then hash sign. So both can be used. For example, this is a symbol of less than sign, and if you want to use less than sign, then don't write it as in HTML code. तो आपको करना ये है कि आपको एज लेस देन को ऐसे यूज ना करके बल्कि किसके साथ यूज करना है, एम्परसेंड के साथ. सो जस्ट राइट एम्परसेंड एंड देन LT. और आपको अगर नंबर पता है इसका एंटिटी नंबर, तो आप एंटिटी नंबर के साथ लिख सकते हैं. बस आपको यहाँ पर फिर हैश साइन और अप्लाई करना पड़ेगा. तो फर्स्ट मेथड इजी है, इसमें एंटिटी नेम के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी को मालूम होता है एंटिटी नेम क्या है आपका. तो लेस देन के लिए LT होगा एंटिटी नेम. तो आपको LT यूज़ करना है, इसको याद रखना पड़ेगा. या तो आप नंबर को याद कर लीजिए, एंटिटी नेम को याद कर लीजिए. These are all the symbol. For non-breaking space, NBSP is used. For less than LT, greater than GT, ampersand AMP, double quotation mark QOT, and for apostrophe ampersand APOS. And these are the number 160, 60, 62, 38, 34 and 39. तो आपको ये याद कर लेना है, इसको याद करना पड़ेगा आपको कि किस स्पेशल सिंबल के लिए आपका क्या लिखना पड़ता है. नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस को अभी डिटेल में समझेंगे. लेस देन के लिए LT, ग्रेटर देन के लिए GT. तो ये तो आसान है याद करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. पहले बात करते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस की. नो ब्रेकिंग स्पेस, नो ब्रेकिंग स्पेस NBSP, नो ब्रेकिंग स्पेस. N for no, B for breaking and SP for space. इसकी ज़रूरत क्या है? सपोज आपको लिखा हुआ है 12 एंग्री मैन, और ये आपको एज इट इज़ चाहिए. हम जानते हैं कि पैराग्राफ टैग जब हम यूज़ करते हैं तो पैराग्राफ टैग में ब्राउज़र अपने अकॉर्डिंग डेटा को सेट करता है आपका. मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे पैराग्राफ के अंदर लिखा है एज इट इज़ डेटा प्रिंट हो जाए. तो अगर आप ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर उसी फॉर्मेट के अंदर प्रिंट हो, तो फिर आपको इंटेंशनली बताना होगा उसको, और
बताने के लिए आपको NBSP का यूज़ करना पड़ेगा M% के साथ। तो M% NBSP का मतलब ही है नो ब्रेकिंग स्पेस, यानी कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। वो या तो एक साथ आए, अगर उस लाइन में स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट लाइन के साथ आएगा, लेकिन जहाँ भी अपीयर होगा वो कम्प्लीटली एक साथ अपीयर होगा, अलग अलग जगह अपीयर नहीं होगा। तो इसको नॉन ब्रेकिंग स्पेस बोलते हैं। तो इसको कोड के अंदर कैसे यूज़ करना है, एक प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया गया 12 एंग्री मैन, और हम इसको एक साथ प्रिंट करना चाह रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। तो हमें NBSP M% के साथ यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद सेमी कॉलन और लगाना होता है। आप देख सकते हैं इसमें सेमी कॉलन लगा हुआ है। ये सिंबल है, आप पीछे सिंबल जितने भी देखेंगे सभी के साथ सेमी कॉलन लगा हुआ है, M% का साइन पहले, देन उसका रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद सेमी कॉलन का साइन। और रिप्रेजेंटेशन कैसे है, आपका रिप्रेजेंटेशन एंटिटी नेम और एंटिटी नेम दोनों से कर सकते हैं। तो NBSP के बारे में, suppose you want to use a phrase 12 angry men, and here you would not want to browser to split the 12 angry and men across the two lines. So in cases where do you want the client browser to break text, you would use a non-breaking space entity %NBSP instead of a normal space. So for example, when coding the 12 angry men in a paragraph, you should use समथिंग सिमिलर टू द फॉलोइंग कोड। तो उसके लिए कोड दे रखा है, ये कोड है, हम इसके अंदर NBSP का एक एग्जाम्पल है। डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप फर्स्ट टैग है इसका। डॉक्यूमेंट टाइप बताता है कि HTML का टाइप, इसका टाइप HTML है प्रोग्राम का। देन हम यूज़ करते हैं HTML, ये एक रूट टैग है, HTML से स्टार्ट करेंगे और HTML से ही क्लोज करेंगे। हेड है, हेड में हेडिंग देंगे, हेड को क्लोज किया। हेड को क्लोज करने के बाद हम टाइटल लिखेंगे, जो भी टाइटल लिखेंगे वेब पेज का वही टाइटल हो जाएगा। अब टाइटल है नॉन ब्रेकिंग स्पेस एग्जाम्पल, ये टाइटल अपीयर होगा वेब पेज का। उसके बाद बॉडी को स्टार्ट किया हमने। अब बॉडी को स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग लिखा। हम जानते हैं पैराग्राफ टैग एक कंटेनर टैग है, इसलिए पैराग्राफ टैग को स्टार्ट भी किया है और एंड भी किया गया है। अब यहाँ पर पैराग्राफ है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक अपीयर्स इन दिस मूवी 12 विदिन डबल कोट्स 12 एंड NBSP, क्योंकि हम ब्रेक नहीं करना चाहते। NBSP सेमीकोलन एंग्री एंड NBSP सेमीकोलन मैन। हमारा टारगेट ये है कि 12 एंग्री और मैन के बीच में कोई भी आपका स्प्लिट ना हो डेटा इसके बीच में। तो जहाँ से हम नहीं चाहते हैं कि डेटा स्प्लिट ना हो, NBSP यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, इसलिए 12 और एंग्री के बीच में %NBSP यूज़ किया गया है। इसी तरीके से एंग्री और NBSP मैन के बीच में %NBSP को यूज़ किया गया है। देखते हैं यहाँ पर, तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। An example of this technique applies in this movie is 12 angry men। तो इस तरीके से आपका आउटपुट शो होगा 12 angry men। और हम देख सकते हैं ये कम्प्लीटली एक साथ 3 वर्ड्स अपीयर हुए हैं 12 angry को। और ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए हमने किया, ऐसा करना इसलिए पड़ा क्योंकि पैराग्राफ टैग जब कभी हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर, तो HTML टैग में जब HTML में जब कोई भी पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं तो पैराग्राफ टैग स्प्लिट कर देता है। कोई श्योरिटी नहीं है कि जिस तरीके से हमने लिखा है डेटा उसी तरीके से डेटा प्रिंट हो। और हम ये चाहते हैं इंटेंशनली कि जैसा डेटा हमने लिखा है वैसा डेटा प्रिंट हो, डेटा स्प्लिट ना हो। तो हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस NBSP यूज़ करते हैं। लिखना ये है आपको %NBSP ऑफ ए सेमीकोलन, जिन 2 वर्ड्स के बीच में आप ये लिखोगे %NBSP, वहाँ डेटा ब्रेक नहीं होगा, वर्ड के बीच में आपका नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका NBSP का। ये आपने प्रोग्राम देखा NBSP का, तो इसको करके देखिएगा आप। और इसमें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जहाँ भी हमें लगे कि वो डेटा आपको स्प्लिट नहीं होने देना है तो वहाँ हम NBSP को यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक बात याद रखिएगा कि HTML से स्टार्ट होता है, HTML से क्लोज होता है, और बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं वो अपीयर होता है स्क्रीन पर, वही पार्ट होता है वेब पेज का। और टाइटल अगर हम नहीं लिखेंगे तो वेब पेज विदाउट टाइटल डिस्प्ले होगा, और टाइटल लिखते हैं तो टाइटल के साथ डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट टैग है आपका HR टैग।
इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल इन HTML। तो HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल। HR टैग का बेसिकली वर्क है डिवाइड करना, और ये एम सेगमेंट में डिवाइड करना पैराग्राफ को, और ये एक आपका एम्प्टी टैग है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सिर्फ एम्प्टी टैग याद करने हैं, क्योंकि टैग की बेसिकली 2 कैटेगरीज है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कंटेनर टैग को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एम्प्टी टैग लिमिटेड होते हैं। ऑलमोस्ट सभी, ज़्यादातर टैग्स आपके कंटेनर टैग की कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ आपको एम्प्टी टैग को याद करना है। तो सबसे पहला जो आज हम एम्प्टी टैग पढ़ेंगे वो है HR। इसी तरीके से एक और एम्प्टी टैग है BR टैग, इसे हम बाद में पढ़ेंगे भी, लेकिन जहाँ कभी पैराग्राफ में हमें लाइन ब्रेक करना होता है हम वहाँ BR टैग यूज़ करते हैं, लाइन वहाँ से ब्रेक हो जाती है। So HR tag, the HTML HR tag is used for creating a horizontal line. So HR tag is used for creating a horizontal line. This is also called as horizontal rule in HTML, and this tag is an example of an empty element. The HR element has a space between the character HR and the forward slash. तो हम यहाँ पे देखेंगे फॉरवर्ड स्लैश में मार्क करना होता है। फॉरवर्ड स्लैश एम्प्टी टैग में हमें यहाँ लिखना पड़ता है HR के बाद फॉरवर्ड स्लैश। And if you omit this space, older browser will have trouble rendering the horizontal line, while if you miss the forward slash character and just use HR, it is not valid in XHTML। तो XHTML अगर पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हमने वर्जन पढ़े थे, तो वहाँ अगर हम HR को यूज़ करते हैं तो वो वैलिड नहीं दिखाएगा। मॉडल में वैलिड दिखाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा HR को फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ करने के लिए। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। HR टैग की फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल रूल टैग, और इसके थ्रू हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं, और ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, और जब इसे हम यूज़ करते हैं तो HR और फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ कर सकते हैं। और हमें XHTML में अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये एरर को शो करेगा। तो अभी प्रोग्राम देखते हैं इसका एक, दिस इज स्मॉल प्रोग्राम हियर। HTML से प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, and HTML is a root tag, that's why all statements are written within HTML. Next, head tag, and there is a title horizontal line example. The title है horizontal line example, and after that a body statement. There is a paragraph, small paragraph is here. This is a paragraph and should be on top. This is a small paragraph. आपने एक पैराग्राफ लिखा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। पैराग्राफ में जैसे मैंने बताया NVS पे अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो ब्राउज़र अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा, लेकिन ये एक स्मॉल पैराग्राफ और एक सिंगल लाइन है, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा इस केस में। इसके बाद आपने HR यूज़ किया तो जैसे हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर होता है HR टैग विद फॉरवर्ड स्लैश, देन द लाइन विल बी paragraph, and after that as a paragraph is here, this is a paragraph 2 and should be at the bottom. This is paragraph number 2। तो एक पैराग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद आएगा एक पैराग्राफ और प्रिंट होगा, पैराग्राफ कंटेंट होगा, दिस इज द पैराग्राफ 2 and should be at the bottom, and then after body को क्लोज करेंगे, and then after HTML को क्लोज करेंगे, तो ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट के बाद हम देखते हैं तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। HR के बाद स्पेस आता है, और HR से पहले और बाद में दोनों बार स्पेस आएगा, ये याद रखिएगा जब कभी हम HR यूज़ करेंगे ब्राउज़र स्पेस देता है इसके बाद। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ को हमने P से प्रिंट किया था, सेकंड पैराग्राफ को P से प्रिंट किया था, और इन दोनों के बीच में हमने HR टैग यूज़ किया था, तो इसीलिए एक लाइन यहाँ पर अपीयर हो रही है विद फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ करते हैं HR टैग को, ये याद रखिएगा आपने HR टैग यूज़ किया है विद फॉरवर्ड स्लैश। XHTML को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये एरर शो करेगा अगर आप सिर्फ HR लिखते हैं, अदरवाइज ये एरर शो नहीं करेगा। तो ये था HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल टैग। हॉरिजॉन्टल रूल टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये एक एम्प्टी टैग है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ करते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है डिफरेंट पैराग्राफ्स के बीच में, पैराग्राफ के बाद पहले एक स्पेस होता है आपका,
बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स। Logical text and physical text. Logical text are used to indicate to the visually impaired that some emphasizes on the text. Each browser has its own technique as to how to indicate to its viewer that the text between the texts are different. The syntax of the all is logical text and the syntax. जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वहाँ पर हम टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली टू टेक्निक्स हैं। इस टेक्स्ट पहला है आपका लॉजिकल टेक्स्ट और दूसरा है आपका फिजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट और फिजिकल टेक्स्ट के थ्रू हम टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। लॉजिकल टैग बेसिकली ब्राउज़र डिपेंडेंट होते हैं, बट फिजिकल टैग ब्राउज़र डिपेंडेंट नहीं होते। आप किसी भी ब्राउज़र पर प्लेटफॉर्म पर चलाएंगे तो वो सेम रिजल्ट देंगे आपको। कुछ है लॉजिकल टैग। सबसे पहले DFN इज बेसिकली डेफिनेशन फॉर ए वर्ड बीइंग डिफाइंड। किसी वर्ड को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम DFN टैग यूज़ करते हैं। टिपिकली डिस्प्लेस इटैलिक, तो इस इटैलिक में डिस्प्ले होता है और यूज़ करने का ये स्टार्ट टैग है, ये क्लोज टैग है। एंड सेकंड इज एम्फसाइज टैग, इंडिकेट दैट द कैरेक्टर indicates that character should be emphasized in some way, usually displayed in italic। तो ये italic में ये भी डिस्प्ले होता है। जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द लॉजिकल टैग्स अलग अलग बिहेव करते हैं अलग अलग ब्राउज़र में, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहता है। तो एम्फसाइज अगर हम किसी वर्ड को करना चाहें, फोकस करना चाहें, तो हम EM टैग यूज़ कर सकते हैं। तो EM टैग इसलिए एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट साइड इंडिकेट शॉर्ट कोड और शॉर्ट कोड, तो उसके लिए हम साइट यूज़ करते हैं CIT की, ये भी इटैलिक में ही आता है। नेक्स्ट है कोड, इंडिकेट अ सैंपल ऑफ कोड। कभी हमें कंप्यूटर का कोई कोड लिखना है, उस कोड को एज इट इज प्रिंट करना है। कंप्यूटर के साथ यही है कि जैसे कोई प्रोग्राम का कोड है या कोई केमिस्ट्री की कोई इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन को मैं एज इट इज लिखना होगा, कोड को भी एज इट इज लिखना होता है कंप्यूटर में विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आपको कुछ ऐसा लिखना है कोड के फॉर्म में, तो या आपको शो करना है अलग से कि ये कोड है, तो वहाँ आप कोड लिख सकते हैं, कोड टैग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है KBD फॉर यूजली कीबोर्ड एंट्री ऑफन डिस्प्लेज इन द क्लियर फॉन्ट और अ सिंगल फॉन्ट दैट अलाउज टू द सेम विथ ऑफ ईच कैरेक्टर। तो ये कीबोर्ड एंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये जनरली इसका फॉन्ट होता है, क्लियर फॉन्ट होता है, जो ये दिखाता है कि अलग दूसरे टेक्स्ट से अलग है थोड़ा सा। तो कीबोर्ड एंट्री के लिए हम KBD यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉप। तो ये स्टॉप और EM बेसिकली सेम ही है, ये भी एम्फसाइज करने का ही काम करता है। थोड़ा किसी भी कैरेक्टर को, ये वर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपका एम्फसाइज करता है, फोकस करता है आपका, और ये बोल्ड में डिस्प्ले होता है, जबकि एम्फसाइज आपका इटैलिक में डिस्प्ले होता है, तो स्ट्रॉन्ग आपका बोल्ड में डिस्प्ले होता है। जिससे ये पता चल सके कि किसी वर्ड पर पर्टिकुलर फोकस किया गया है या नहीं किया गया। तो अगर हमें किसी पर फोकस करने वर्ड है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है किसी भी पैराग्राफ के अंदर, तो उस पैराग्राफ के कोई भी पैराग्राफ के अंदर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उस इंपॉर्टेंट वर्ड के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज VER टैग। VER is basically variable often displayed in italic or underline। तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए VER टैग होता है, ये इटैलिक या अंडरलाइन में रिप्रेजेंट हो सकता है, ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है। तो दीज ऑल आर द लॉजिकल टैग्स। DFN emphasize site code, KBD strong and site, KBD strong and web। नेक्स्ट है आपका फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स। फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल ब्राउज़र डिपेंडेंट नहीं होती, आप इनको यूज़ करेंगे तो ये सेम रिजल्ट देंगी हमेशा ऑलवेज। तो HTML has a few text for controlling the appearance and flow of text. There are 3 text markup elements for controlling the font of the text segment, and 3 text are controlling the flow of text, font text, type styles। तो जो कैटेगरी आती है वो आता है बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक, सब, SUP, TT and U underline। These all are the physical tags। For bold we can use B, for italic text style we can use I, for strike
स्टैक में विल डिस्प्ले टेक्स्ट विद अ लाइन ड्रॉन थ्रू इट्स। जैसे ये आपका वर्ड लिखा है, अगर आप स्टैक यूज़ करेंगे तो थ्रो के बीच में ये एक आपका लाइन से कट हो जाएगा ये आपका, तो इसीलिए इसे स्टैक बोलते हैं। एस सी बी सबस्क्रिप्ट में लिखना है तो एस सी बी, सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है तो एस सी पी, और टाइपराइटर लाइक फॉन्ट में लिखना है तो टी टी, और अगर अंडरलाइन करना है तो यू। दीज ऑल आर द फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स। फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ब्राउज़र डिपेंडेंट नहीं होती, ये हमेशा सेम रिजल्ट देता है, लॉजिकल टेक्स्ट की तरह नहीं है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी को आपको याद करना है और इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं और उसके अंदर समझ में आएगा हमें कि जब ये डिफरेंट टेक्स्ट इस तरीके से बिहेव करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है HTML से, और HTML पर ही एंड होगा ये, ऑब्वियसली HTML पर ही एंड होगा। देन बॉडी टैग, इसमें कोई हेड और टाइटल नहीं दिया गया। हेड और टाइटल ऑप्शनल होते हैं, अगर आप टाइटल नहीं देंगे तो टाइटल को हमेशा हेड टैग के अंदर यूज़ किया जाएगा। हमें टाइटल नहीं देना, इसलिए हमने हेड टैग को भी यूज़ नहीं किया इसके अंदर। तो टाइटल नहीं है तो विदाउट एनी टाइटल ये डिस्प्ले होगा वेब पेज। इसके बाद बॉडी मेन टैग है, ये बेसिकली बताता है आपका कि वेब पेज का कंटेंट क्या होगा। तो जो भी कुछ कंटेंट होगा वो बॉडी टैग के अंदर हमें लिखना पड़ता है। तो इसके बाद हमने एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, तो यहाँ हम देख सकते हैं पी टैग इज़ यूज्ड, एंड देन आफ्टर बी, बोल्ड मीन्स बी फॉर बोल्ड, तो डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट, तो ये बोल्ड टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। देन आफ्टर ई एम मीन्स एम्फसाइज्ड, तो ये एम्फसाइज करेगा ये आपका, ये एक लॉजिकल टैग है। देन आपका आई मीन्स इटैलिक, तो ये इटैलिक में डिस्प्ले करेगा। एंड आफ्टर हम वी कैन सी दैट बी आर टैग इज यूज्ड, बी आर टैग इज यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक एंड इट इज ऑल्सो ए एम्प्टी टैग। तो पैराग्राफ के अंदर जब कभी आपको लाइन चेंज करना होता है तो हम बी आर टैग यूज करते हैं। एंड देन स्ट्रॉन्ग defines important strong text, and then subscript, for subscript sub, for superscript sup, for inserted text ins, for deleted text del, inserted ins and del are logical text styles। mark, define mark highlighted text। आप कुछ इसके अंदर टैग्स थे जो लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल के अंदर शो नहीं किए गए थे, लेकिन इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देख रहे हैं। आप किसी भी टैग को, लॉजिकल या फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल को आप पैराग्राफ टैग के अंदर लिख सकते हैं। और जब आप प्रोग्राम बनाएं तो जितने भी प्रीवियसली आपको बताया गया है इसके टैग के अंदर, उन सभी टैग को यूज़ कीजिए। प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा होता है, इसलिए इसमें से कुछ टैग को अवॉइड किया गया, कुछ को यूज़ किया गया सिर्फ दिखाने के लिए, शो करने के लिए वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाएं तो सभी टैग को आप यूज़ करें। और पैराग्राफ टैग के अंदर टैग को यूज़ किया गया क्योंकि पैराग्राफ में डिफरेंट हम स्टाइल्स चाहते हैं और टेक्स्ट स्टाइल्स चाहते हैं, तो हम लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल, फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। और हमने इसके अंदर बी आर टैग को यूज़ किया, बी आर फॉर लाइन ब्रेक। तो जहाँ कहीं भी हम बी आर टैग यूज़ करेंगे लाइन ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। बी आर टैग भी एक एम्प्टी टैग है। तो अभी तक हमने दो एम्प्टी टैग पढ़े। फर्स्ट वन इज एच आर टैग, हॉरिजॉन्टल रूलर टैग, जो लाइन ड्रॉ करता है आपका पैराग्राफ के बीच में, और सेकंड इज बी आर टैग जो लाइन को ब्रेक करता है, यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपका नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाएगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ही पूछ लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम दैट राइट एनी 3 or 4 एम्प्टी टैग्स। मोस्ट ऑफ द टैग्स आर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कंटेनर्स टैग्स, सो कंटेनर टैग नहीं पूछे जाते एग्जाम के अंदर। एंड अगर आपसे पूछा जाता है कि एम्प्टी टैग बताइए, तो आपको एम्प्टी टैग याद होनी चाहिए और उनकी एप्लीकेशन उनको आपको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाएंगे, वेब पेज बनाएंगे, कोई वेब पेज बनाएंगे, तो आपको वहाँ एम्फेसाइज भी करना होगा, वहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी करना होगा, डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स भी देने होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टैग के थ्रू हम डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट सो मेन थिंग इज दैट इन दिस प्रोग्राम we give different logical or physical text styles
सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्सर प्रोग्राम के अंदर बेसिकली जब हम कोई केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखते हैं या मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन लिखते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमको लिखना है एक्स स्क्वायर या हमें लिखना है x2, तो ये सबस्क्रिप्ट बोला जाएगा 2 और ये सुपरस्क्रिप्ट बोला जाएगा आपका एक्स स्क्वायर में 2। तो इसके लिए SUP और SUB यूज़ किया जाता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अब आफ्टर जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन के बाद जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जैसे आपने दिया था उसी तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पर एक मेन पॉइंट देखा, ब्राउजर डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग एज P means bold and EMSI means italic. However, there is a difference in the meaning of this tag. B and I defines bold and italic. Text was strong and EM means the text is important. तो जब हम strong या EM यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है। आप ये शो करना चाहते हैं वेब पेज के अंदर कि ये टेक्स्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, तो वहाँ हम स्ट्रॉन्ग या एम्फेसाइज यूज़ करते हैं। लॉजिकल टेक्स्ट है दोनों लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स हैं दोनों। और जब हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली बोल्ड में ही डिस्प्ले होता है और EM जनरली इटैलिक में डिस्प्ले होता है। तो डिफाइंड बोल्ड टेक्स्ट, ये डिफरेंट आंसर थे। ये एम्फेसाइज टेक्स्ट, कंटेंट वही है इसका, अगर बोल्ड यूज़ किया तो हमने बोल्डली लिखा है सेंटेंस को, इसलिए ये बोल्ड टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि बोल्ड डिस्प्ले हो रहा है, ये एम्फेसाइज हो रहा है, ये इटैलिक में हो रहा है, ये इटैलिक टेक्स्ट भी इटैलिक में हो रहा है। तो एम्फेसाइज इटैलिक सेम बिहेव करते हैं, बट ये लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल है और ये फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल है। डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट, ये स्मॉलर टेक्स्ट के लिए हमने यूज़ किया है स्मॉल SMLL, तो स्मॉलर टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन आफ्टर स्ट्रॉन्ग, अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट बोल्ड की तरह ही बिहेव करता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बोल्ड की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर बोल्ड में ही वर्ड फॉर्मेट में ही आंसर आपका डिस्प्ले हो रहा है। देन आपका था बोल्ड के बाद था आपका सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, डिफाइन सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये ओवरलैप इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों यूज़ किए एट द सेम टाइम। तो सुपरस्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली ये नंबर्स यूज़ करने के लिए केमिकल इक्वेशन या फिर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन भी यूज़ किए जाते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ अच्छा होगा अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू को प्रिंट करें, तो हम ये जानते हैं कि हमें सुपरस्क्रिप्ट में इसको लिखना होगा, एक्स को जनरल रिप्रेजेंटेशन देंगे और 2 को SUB टैग के अंदर लिखना होगा। SUP सुपरस्क्रिप्ट के लिए, सबस्क्रिप्ट के लिए SUB, सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP और सबस्क्रिप्ट के लिए SUB। तो जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है वो आपको लिखना पड़ेगा। आपने कंप्लीट टेक्स्ट को ही लिखा है इसलिए कंप्लीट टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफाइन सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट एंड डिफाइंस इंसर्टेड टेक्स्ट, डिफाइन सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। देन आपका सबस्क्रिप्टिव टेक्स्ट था आपका, ये प्रिंट होने के बाद इंसर्टेड टेक्स्ट। तो इंसर्टेड टेक्स्ट में आपका हम देख सकते हैं कि अंडरलाइन हो रहा है इंसर्टेड टेक्स्ट, ये दिखाएगा कि टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है। और उसके बाद मार्क, डिफाइन मार्क, हाईलाइटेड मार्क, तो ये मार्क शो करता है इस आंसर में, ये शो नहीं हो रहा, मे बी इन द नेक्स्ट पेज। तो ये डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स से, तो इन टेक्स्ट स्टाइल्स को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी HTML प्रोग्राम्स में। 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल से इसलिए अलग है क्योंकि ब्राउज़र डिपेंडेंट नहीं होती, वो हमेशा सेम रिजल्ट देती है। और लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स ब्राउज़र पर वेरी करती है, ब्राउज़र टू ब्राउज़र, वो उनका थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, फंक्शनिंग चेंज हो जाती है आपकी, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता। जैसे एम्फेसाइज है तो एम्फेसाइज इटैलिक में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो एम्फेसाइज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेसिकली किसी भी वर्ड को या किसी भी पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है, जनरली ये बोल्ड में रिप्रेजेंट होता है। तो ये प्रोग्राम से, इसमें आपके 2 प्रोग्राम थे बेसिकली, एक प्रोग्राम था टेक्स्ट स्टाइल से रिलेटेड और सेकंड प्रोग्राम था हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेटेड। तो ये याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल रूलर, और रूलर के थ्रू हम हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं और BR टैग के थ्रू हम लाइन को ब्रेक करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।